वेलकम टू द पेविलियन। मैं हूं फखर आलम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स एंड द एयरवाइज ऐप आर कंटिन्यूड कवरेज ऑफ द आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप एंड वी हैव न्यूज फ्रॉम एडिलेड एंड दैट इज जो आखिरी मैच था बांग्लादेश और भारत का, वो बड़ा सनसनीखेज रहा और एंड में इट वाज इंडिया दैट हैज गॉन ओवर द लाइन विनिंग दिस वन। ये रही मैच समरी आपकी स्क्रीन पे। इंडिया ने आज पहले बैटिंग करते हुए 184 रन बनाए थे 6 विकेटों के नुकसान पे अपने 20 ओवरों के अंदर। अगेन इट वाज विराट कोहली who looked really good, and then Rahul and Surya they're also contributing. Okay, bowling by Shakib Al Hasan, but the rest were just very average. Taskin couldn't pick up a wicket. बांग्लादेश इन रिप्लाई, ये डकवर्ड एंड लुइस बारिश हो गई थी उसके बाद और इनको एक रिवाइज टोटल मिला था। बारिश से पहले बहुत शानदार तरीके से लिटन दास ने इनिंग्स का आगाज़ किया था और यूं लग रहा था कि ये बांग्लादेश का मैच है। अगर बारिश ना थमती, बारिश होती रहती, मैच वॉश आउट हो जाता तो बांग्लादेश ये मैच जीत जाता। बट रिवाइज टोटल पे 16 ओवर्स के अंदर जो टारगेट दिया गया था, बदकिस्मती से बांग्लादेश उसको पूरा ना कर सका। एंड बांग्लादेश होल्डिंग ट्रू टू द वर्ड्स ऑफ देयर कैप्टन दैट वी आर नॉट हियर टू विन. I think that kind of played on their luck and their fortunes. Disappointed Bangladeshi fans. And with that, here is the Group 2 Super 12 table, points table. And India with 4 games are at 6 points. South Africa with 3 games are at 5 points. Bangladesh with 4 games at 4 points. Zimbabwe 4 games, 3 points. Pakistan with their 3 games, only 2 points. Netherlands 4 games, 2 points. Now, how does this shape up? We'll discuss that with our panelists, the legends, the icons that I have here in the pavilion with me. I've got these wonderfully great players of the game. I've got the young dynamic Shoaib Malik, Mr. Dependable, Mr. Reliable, Misbah-ul Haq, toe crushing, batsman terrorizing, the wonderful Waqar Younis, and the legend of all legends, the Sultan himself, Wasim Akram. Assalamu alaikum everyone. And almost there, yet not there, Wasim, Bangladesh. Yeah, I think they did really well when they went out to chase. I mean, they started off well. They were 66 in 7 overs with no wickets, 10 wickets in hand. They were kind of cruising and then rain interrupted. I thought they were still favourites. Yeah. They needed about 85 in 9 overs with 10 wickets in hand, and we were all sitting in the dressing room means in the green room. और ये डिस्कस कर रहे थे कि ये हो सकता है 10 विकेटें हाथ में हैं, बॉल गीला भी हो रहा है। बट आई सपोज क्रेडिट टू इंडिया, इंडियन बॉलर्स, प्रेशर रखा बांग्लादेश ने, मगर विकेटें गिरते गई और विकेटें गलत तरीके से शॉटें मारते रहे। छोटी बाउंड्री को उन्होंने देखा नहीं, तरीके से मारी नहीं हिटिंग। अगर वो सोच समझ के हिटिंग करते, टैलेंट है उनमें, बट जब भी ऐसा क्रंच मैच आता है ना, वहाँ पे बांग्लादेश somehow they crumble. Yeah. But in the end, it was a good cricket game. Well done to India. Virat Kohli got 60 odd. और जब वो बैटिंग करने आया था विराट, उस वक्त बॉल तस्किन ने, आपने बोला शुरू में, क्या ज़बरदस्त स्पेल किया था और उससे कप्तान ने उसको चारों के चावर ओवर एक गो में दे दिए। सो आई सपोज इट मेंट कि कप्तान वांटेड के ऊपर से अगर 2-3 विकेट लेनी है तस्किन ले सकता है। But I think generally 185, 180 plus was just a big total. Well, it was. Waqar, you know, they say cricket is a game of small margins, especially when it comes to T20, really small margins. आज बांग्लादेश की bowling was average except for Taskin, जिनका हम जिक्र कर रहे थे। 3 नो बॉल्स उन्होंने कराई, एंड में 5 रन से हारे DNL के ऊपर जब ये इनको जो वो रखा है। So what do you think? Those 3 no balls costed them the game? I mean, no ball is a crime. I always say that, especially जितना फॉर्मेट छोटा होता चला जाएगा उतना ही आपको ज़्यादा डैमेजिंग होगा, पेनफुल होगा, and disciplines definitely were missing. But I felt that they were, on the path, Bangladesh, to win this game. It's just unfortunate बारिश गलत टाइम पे आई, और अगर आई तो फिर आती चली जाती, तब भी उनके लिए उनकी दुआ ये थी। और इस तरह के मैच में होता ये है कि जब आप एक अच्छे मोमेंटम के साथ खेल रहे होते हैं ना, तो एकदम बारिश आ जाए और आपका एक वो रिदम भी एक तो टूटता है, पहली बात, और दूसरी जो फील्डिंग टीम होती है उसको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है टू रीगैदर एंड सी के हम लोग क्या गलत कर रहे हैं, क्या नहीं गलत कर रहे हैं। और जो बैटिंग टीम होती है, बिकॉज दे हैव डन सो वेल इन दैट पीरियड, so they just sort of kind of relax हो जाता है, because at that stage not only on DL but they were overall winning that game. They were in control of that game. But वो बारिश अगर 20 मिनट और हो जाती तो ये मैच खत्म हो गया था. But that's how this game goes. And then
very professional, very thoughtful bowling by India. Yeah, very thoughtful bowling by India. Misbah, let me bring this to you. Before the rain, Bangladesh was 66 for the loss of none in 7 overs. Yeah. After the game, they were 79 for the loss of 6 wickets in 9 overs. This is what Waqar was saying. Momentum broken. The whole thing changed and on its head. 9 ओवरों में 85 चाहिए था और आपके पास 10 की 10 विकेटें थी. आई थिंक जो बिगेस्ट प्रॉब्लम थ्रू आउट द टूर्नामेंट बांग्लादेश की चल रही है वो यही है कि उनकी बैटिंग फॉर्म में नहीं है. पिछले मैच में भी एक शांटो ने सिर्फ 70 प्लस रन्स किए, दूसरी तरफ से बिल्कुल कोई रन नहीं हुए और शाकिब की जो फॉर्म है विद द बैट, दैट इज़ अ बिग कंसर्न फॉर देम. आज भी एक बंदे ने रन्स किए हैं और इतना वो क्लोज आ गए हैं, दूसरी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं हुई. स्पेशली मेरे ख्याल में शंटू बीइंग द मैन ऑफ द मैच इन द लास्ट गेम, टॉप स्कोरर, आज उसकी तरफ से कंट्रीब्यूशन है 25 बॉलों पे 21 रन. थोड़ा सा वो कंट्रीब्यूशन करते, थोड़ा सा वो लोड थोड़ा सा वो हल्का करते लिटन दास का, तो मेरे ख्याल में ये सिचुएशन डिफरेंट. कई दफ़ा होता नहीं बैट्समैनों को, आई सपोज स्पेशली शांतो हैज़ बीन विद द टीम फॉर अ लॉन्ग टाइम. ये तो नहीं होता साइकोलॉजिकली कि मैंने 160 कर लिया, आई कैन जस्ट प्ले आई कैन प्ले रिलैक्स क्रिकेट. बट यूजुअली प्रोफेशनल लेवल पे होता नहीं है, ऑपोजिट होता है इफेक्ट कि मैं अगले मैच में भी 70 करूँ. मुझे ये लगता है वसीम भाई जो शांतो आज थोड़ा सा वो हुए ना 25 बॉलों पे 21 जो रन्स किए, उनके सामने बाउंड्रीज लग रही थी. लिटन दास वाज प्लेइंग अमेजिंगली. तो सम टाइम ऐसा होता है कि थोड़ा आपका जो स्ट्राइकर है, जो नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़ा है, जैसे लिटन दास था, वो उसको शायद कह रहा होगा मेरी शॉट्स लग रही हैं तो मुझे स्ट्राइक देते रहो, मैं खेलते रहता हूँ, अगर मैं आउट हुआ देन यू टेक ओवर. तो ये हो सकता है. सम टाइम मैनेजमेंट से आपको मैसेजेस आते हैं, आप ये कहते हैं कि चलो ये अच्छा स्टार्ट है, विकेट ना गिराओ, तो कोई मसला नहीं है. मुझे लगता है मलिक उसने ना एक टाइम पे वो 11 गेंदों पे 2 रन थे उसके, तो ये मसला मैं आई कैन अंडरस्टैंड कि जो वो एक बंदा मार रहा है, लेकिन उससे रोटेशन, स्ट्राइक रोटेशन भी नहीं. उसी चीज पे आ रहा हूँ विकी भाई, ये ऐसा फॉर्मेट है एंड वंस यू चेजिंग 180 प्लस, सो जो ये लिटन दास थे, अगर तो उन्होंने उनको ये बोला है कि तुम जो है थोड़ा आहिस्ता खेलो, तो वो ये गलत है. क्योंकि हर बंदे की अपनी गेम है, मोमेंटम को गिरने नहीं देना. क्योंकि मोमेंटम चलते हुए अगर आप आउट भी हो जाएं और जब अगला बंदा आता है उसके लिए आसान हो जाता है कि वो सेम मोमेंटम को जो है कंटिन्यू करे. मुझे लगता है कि जहाँ पे वो बिल्कुल गिरे हैं ना, वो गिरे हैं शाकिबुल हसन, अफीफ हुसैन और यासिर अली. 13-3-1 इनमें से भी अगर को थोड़ा सा साथ देता, पार्टनरशिप लगती, तो मुझे लगता है कि ये मैच बांग्लादेश जीत सकता था. लेकिन ये है कि मोमेंटम नहीं जाना चाहिए. बेशक एक बैट्समैन के रन्स बन रहे हो, दूसरे का भी काम है, जो उसका गेम है वो खेले. ये तो बात दुरुस्त है. लिटन दास ने आज बहुत ही शानदार इनिंग्स खेली है और अगर आप देखें वो ऑलमोस्ट लुक्ड शोएब दैट ही वाज लाइक सूर्या कुमार यादव फ्रॉम द बांग्लादेशी साइड टुडे. ही लुक्ड मैग्निफिसेंट. ये आपकी स्क्रीन पे आ रहा है जी शोएब. बिल्कुल, मैं यही देख रहा था कि आज उन्होंने फर्स्ट टाइम उनको ओपन करवाया, वरना वो 3 नंबर खेल रहे थे. कि उनकी शॉट्स देखें, हर तरफ खेल रहे हैं और बॉल के मेरिट पे खेल रहे हैं, इसीलिए आपको सक्सेस मिल रही है एज अ बैट्समैन. के ये कंडीशंस में थोड़ा बाउंस है, थोड़ा बॉल हिल रहा है, लेकिन उन्होंने चारों तरफ खेला. इसीलिए आप देखें कि मोस्टली हमें बैट्समैन वही रन्स करते हुए नज़र आ रहे हैं जो जहाँ का बॉल है उसको वहाँ खेल रहे हैं. तो आई गेस ये बाकियों के लिए भी ये एक अच्छा जो है चीज़ है कि जहाँ बॉल आ रहा है आप उस तरफ खेलो. और सबसे ज़्यादा चांस ही पहले 3 बैटर्स के पास होता है क्योंकि उनको मोर अपॉर्चुनिटी मिलती है. Yeah, scoring all around, Misbah. Very good wagon wheel for Liton Das. बहुत ज़बरदस्त खेले हैं मेरे ख्याल में. एक ऐसा स्टार्ट दिया उन्होंने जहाँ पे बहुत बड़ा टोटल था. एक टाइम पे ऐसे लग रहा था कि बांग्लादेश अब उन्होंने गेम को सेट कर दिया है. थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशंस और छोटी छोटी पार्टनरशिप्स भी में भी ये मैच ले जाएंगे. अर्ली ऑन ऑस्ट्रेलिया में जो हम देख रहे हैं कि आपको नए बॉल पे इशू हो रहे हैं, नए बॉल पे रन नहीं बन रहे, पावर प्ले उस तरीके से फ्रूटफुल नहीं हो रहा फॉर द बैटिंग साइड्स. जब आप विदाउट लूजिंग इतना बड़ा स्कोर कर देते हैं पावर प्ले में, उसके बाद मेरे ख्याल में बांग्लादेश अब बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है उनके लिए कि मैच को फिनिश नहीं कर सके, जीत नहीं सके. बहुत बड़ा एक चांस था उनके लिए क्वालिफाई करने का, अगर आज वो जीत जाते. और पाकिस्तान के लिए भी मेरे ख्याल में बड़ा चांस था उनके जीतने से. पर वही चीज़ है, मुझे लगता है मिडिल ऑर्डर में जो आके जो गलती की है उन्होंने, कि जब आप 10 रन एंड ओवर देखते हैं और आप हर बॉल पर बाउंड्री मारने जाते हैं, देन यू आर इन ट्रबल इन ऑस्ट्रेलिया. अपोजिशन को पता है, फिर विकेट्स भी गिरती हैं.
और सडनली उसमें डॉट बॉल्स होती हैं। और मेरे ख्याल में वो जो शाकिब और जितने भी बाद में लोग हैं, एक बाउंड्री मारने के बाद भी आपके 3-4 बॉल डॉट हो जाते थे। ऐसे तो यही मेरा गलती हुई है। अगर 7 वो गैप्स में मार के दौड़ के भी रन करते रहते तो लास्ट में भी नूरुल हसन ने 2 गेंदें डॉट हुई हैं, जिसकी वजह से आप देखें कि वो कितना छोटा मार्जिन रहा है एंड पे बिल्कुल आगे। भाई। वसीम, अर्शदीप इज बिकमिंग a more polished bowler operator with every game. आज भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट ओवर उन्होंने कराया जिसमें उन्होंने सिर्फ 2 रन दिए, 2 विकेट्स भी नहीं, एंड दैट वाज perhaps the changing the turning point for this game. Yeah, it was. He's got 9 wickets in this tournament, the most by anyone in Super 12. और उसका टैलेंट मैंने और वकार ने तो एशिया कप में देख लिया था कि जिस तरीके से वो बॉल को स्विंग करता है, नया बॉल दोनों तरफ। मैंने तारीफ सुनी हुई थी इसकी कि आईपीएल में बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है, बट he's got a bright future ahead of him. सेंसिबल बॉलर है, यॉर्कर भी अच्छा कर लेता है, स्लो बॉल भी अच्छी है और नया बॉल मोस्ट इम्पॉर्टेंटली स्विंग करता है। ये 2 विकेटें जो ली हैं एक ओवर में, इसने से 2 रन दे के मैच का 5सा पलट दिया है। एक बिल्कुल और चीज़ है वसीम इनके केस में कि अगर हम देखें तो एशिया कप में बड़ी क्रंच सिचुएशन में इन्होंने रन्स भी दिए, Yeah. एक आधा कैच भी बड़ा क्रूशल गिराया उन्होंने, That was his first tour. लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं नीचे गया। दैट्स व्हाट मैटर्स कि आपसे ख़राब परफॉर्मेंस होगी, लेकिन कभी भी आप ये ना भूलें कि आप अपनी एबिलिटी से आए हुए हैं टीम में। इंडिया में इसको सोशल मीडिया पे उड़ाया गया है, बट ही सेड आई एम नॉट बॉदर्ड। ये एटीट्यूड बड़ा जरूरी है। Credit goes to the management as well. Yeah, कि they yeah. backed him. Even credit goes to the captain also कि they backed him. उसको पता है कि यार ये हमारा बंदा है, इससे मार भी पड़ेगी, इससे कैचेस भी ड्रॉप होंगे, लेकिन ये है कि ये हमारा बेस्ट प्लेयर है और हम इसको बैक करेंगे और वही देखें अब उसके रिजल्ट्स। He's the future. He's the future. That's what they consider him. Yeah. He's going to be And the he next swings. good thing because And Vicky swings both he ways with swings the new both ball. ways, and test match maybe they're going to play him soon, and I think he's 140 plus करता है, handy cricketer. नया बॉल तो बहुत आला, दोनों तरफ वो कितने कंट्रोल से रैली रुस्सो को उस दिन जिस तरीके से आउट किया है वो तो है ही, बट एंड के ओवर्स में स्पेशली जो स्ट्रेंथ है, जो स्टंप्स का यॉर्कर है वो बहुत। आज भी अगर आप देखें 6 के 6 बॉल आखिरी ओवर में, सिवाय पहला बॉल जो उन्होंने पीछे किया, यॉर्कर अंडर प्रेशर भी मिस नहीं हुआ कोई भी। Right. कि वो फुल टॉस हो जाए या कोई इधर उधर प्रेशर में आपसे हो जाता है। मैंने एशिया कप में भी देखा है कि जब डिफरेंट बॉल करने जाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, लेकिन विकेटों वाला यॉर्कर बहुत पक्का है उनका एंड के ओवर्स में। और ये बिल्कुल ये आखिरी ओवर जो है पाकिस्तान का मैच देख जी, रहा था जी। एशिया कप में, ये इनका लास्ट ओवर है। एक ही ये जो बॉल था उन्होंने फौरन रियलाइज किया कि नहीं अब गुड लेंथ वाला कोई सीन नहीं है, गुड लेंथ वाला जो है वो बॉल जा रहे हैं, और वैसे भी साइड की जो बाउंड्रीज थी छोटी थी, तो उन्होंने फौरन रियलाइज किया कि फुल बॉल्स जो हैं वो यहाँ पे बचा सकेंगे, और बहुत अच्छा ओवर था। मैं इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा था एशिया कप में, फर्स्ट वाला मैच, तो ये इसलिए मैं स्टोरी बताना चाह रहा हूँ, ये यंगस्टर्स के लिए बहुत अच्छा है। रोहित ने उनको कहा, बीइंग अ कैप्टन, के लास्ट के ओवर कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आप मिड विकेट पीछे ले जाएं, तो उसने रोहित को कहा कि नहीं रोहित भाई मुझे यही रहने दे फील्डिंग। तो मतलब ये था कि अगर यंगस्टर हैं, आपको लगता है कि आप कॉन्फिडेंट हैं एग्जीक्यूशन में, आपके प्लान में, तो आप कैप्टन के साथ डिस्कस करें और उसे बोलें कि नहीं मुझे ये वाली फील्डिंग चाहिए। हमारे यहाँ पे थोड़ा सा कई दफ़ा बताते हैं यंग बॉलर्स को, आई डोंट नो सब कॉन्टिनेंट में है, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा जनरली, बट जनरल बात कर रहा हूँ। कप्तान अब बॉलर को हर बॉल पे कहेगा अब तू स्लो कर दे, अब तू बैक तो हैंड कर दे, तो बॉलर भी कई दफ़ा, अगर फास्ट बॉलिंग कप्तान है तो वो आई कैन अंडरस्टैंड, बट बैट्समैन बैटिंग कैप्टन टेलिंग द बॉलर व्हाट टू डू ऑन एवरी बॉल, इसका मतलब है कि बॉलर के पास वो कॉन्फिडेंस नहीं रहता टू डिसाइड हिमसेल्फ व्हाट ही वांट्स टू डू। वो Very ये good point. We're just going to interrupt here. We're going to go into a break here on the pavilion. When you come back, we'll be more talk on the other side. Keep watching A Sports and 10 Sports. Welcome back to the pavilion. मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 10 स्पोर्ट्स एंड द AOY's ऐप आवर कंटिन्यूड कवरेज ऑफ द ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप। और कुछ देर पहले आपने देखा मैच इंडिया बांग्लादेश का, इंडिया ने मैच जीता है, उसके बारे में हम बात कर रहे थे। ब्रेक पे जाने से पहले वसीम अकरम ने एक सवाल किया था, शुएब मलिक आपसे वो बात कर रहे थे यंग प्लेयर को, कप्तान की बात, कॉन्वर्सेशन उसके बॉलर्स को, उस पे उसमें यह है वसीम भाई, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अब थोड़ा सा लंबा जवाब है, वो ये है कि जब आप स्टेप बाय स्टेप आए हो ना प्रॉपर सिस्टम से, एज अ बॉलर हो या एज अ बैटर हो, तो
तो उसमें क्या होता है कि आप सारी सिनारियोज में से गुजरे होते हैं, तो आपको आइडिया होता है कि यार मेरी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, मेरी वीकनेसेस क्या हैं, तो आप प्लान बना लेते हो, आप नहीं वो अंदर। लेकिन अगर आप बिल्कुल रॉ टैलेंट के साथ आप उसको नेशनल टीम में खिला रहे हैं, फिर कैप्टन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा इसलिए आ जाती है कि उसकी गेम अवेयरनेस कम होती है, तो कैप्टन का रोल ज़्यादा आ जाता है। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ डिफरेंट वो ये है कि आपको बॉलर को छोड़ना चाहिए, एटलीस्ट उसको ये पता हो कि यार मैंने कौन से बॉल करने हैं या कौन मेरे सामने बैट्समैन खेल रहा है, उसकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, उसकी वीकनेसेस क्या हैं, मेरी क्या फील्ड प्लेसमेंट होनी चाहिए, तो उसको सीखने का मौका मिलता है। लेकिन सम टाइम जब क्रंच सिचुएशन में मैच जाता है, प्रेशर पड़ता है, तो वो क्या होता है, कैप्टन की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो जाती है। जब 5-6 बंदे आ जाते हैं ना, जब क्रंच That is सिचुएशन wrong। पे, वो सिर्फ सिंपल है कि आप कैप्टन को मशवरा दें, और कैप्टन के पास भी ना 5-6 लोगों को नहीं जाना चाहिए, एक आधा बंदा होना चाहिए। उससे ये है कि ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं आती और रिजल्ट अच्छा आने का चांस ज़्यादा होता है। सेम थिंग आई थिंक मैं उसका प्रैक्टिकली थोड़ा सा बताऊंगा। इस्लामाबाद में ही मैंने इस्लामाबाद यूनाइटेड में कुछ यंग बॉलर्स भी थे और फिर मोहम्मद समी था, तो दैट बेसिकली वर्क वेरी वेल फॉर मी। कि मुझे ये होता था कि मैं उनके साथ खड़ा होकर उनसे पूछता था, हमेशा कोशिश करता था कि इनको सोचने दूँ, इनका अपना प्लान, अपनी स्ट्रेंथ कि क्या करने लगे हो जस्ट बिफोर द बॉल, और उनकी ऑप्शन अच्छा ये ऑप्शन है, ताकि मैं देखूँ कि फील्ड उसके मुताबिक ठीक है, इस उस पर ठीक है, इस पिच के लिहाज से, इस बैट्समैन के लिहाज से। एंड देन इफ़ दे आर अंडर प्रेशर, जैसे मलिक ने कहा, तो देन यू हैव टू बेसिकली टेक दैट प्रेशर। उनको इनकरेज करना है कि अच्छा कोई बॉल अगर कराना है ना, तो उसको फिर कहना है कि कोई मसला नहीं, अगर 6 भी लग जाएगा नेवर माइंड, वो छक्का मेरी जिम्मेदारी है, यू जस्ट गो एंड डिलीवर बेसिकली, ताकि वो एग्जीक्यूट करते हुए उसको कोई उसके डाउट ना हो दिमाग में। श्योर। क्वेश्चन विद इन अ क्वेश्चन, अब जैसे पाकिस्तान अंडर 19 की एग्जांपल दे सकते हैं हम। पाकिस्तानी अंडर 19 बनती है फॉर इंस्टेंस, कप्तान होता है उसका। जो मैंने सुना है, नॉट जस्ट नाउ, जनरली, कि जो भी कोच या मैनेजर होता है उसको कप्तान नहीं करने नहीं देता, उसको पहले से बाहर से बताते हैं ये बॉलर चेंज कर दो, ये कर दो। तो वो कप्तान कैसे इवॉल्व होगा? हारने से हम क्यों डरते हैं? देखिए उसी में अभी जो PGL हुई है, पाकिस्तान जूनियर लीग, मैं जिस टीम का मेंटोर था गुजरांवाला का, उसके कोच थे इजाज़ भाई। हाँ। और मैंने इजाज़ भाई को देखा कि इजाज़ भाई ने कभी भी मैच के अंदर नहीं किसी को इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की। ओके, दैट्स गुड। हाँ, हमेशा उससे बात की कैप्टन से, जब मैच ख़त्म हो गया या मैच से पहले, दूसरा ऑपोजिशन को देख के कि यार इनकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वीकनेसेस क्या हैं। तो आई गेस वो आपकी बात बहुत सही है कि जो सीखने वाला प्रोसेस है, जब तक बंदा अकेले उसमें नहीं जाता ना, तो उस सीखने का चांस बहुत कम हो जाता है। तो आई गेस हमारे बहुत सारे ऐसे अच्छे कोचेज़ हैं कि जो मैच से पहले या मैच के बाद जो है अपने जो यंगस्टर्स हैं उनको अवेयरनेस देने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो आपकी बात बिल्कुल सही है कि बंदे को छोड़ना चाहिए। जब बच्चे को हम स्कूल भेजते हैं ना, तो हम कहते हैं कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज पेरेंट्स हमें ये होता है कि नहीं यार बच्चा स्कूल गया तो वहाँ से सीख के आएगा। तो इस केस में भी आई गेस सेम जो है सोचना चाहिए। All right, Virat Kohli became has another record for himself today. Again, looked really good while he was batting. और आज की इस innings के बाद he's become the highest run getter in T20 World Cup history. और you know, with 220 runs, he's now the leading run getter in all the T20 World Cup 2022. Right? इस साल का 2022 का, just in case people get it wrong. So looked really good. ये screen पे दिखाते हैं आपको. He played really well again. And Waqar, he's just been evolving consistently. बीच में थोड़ा सा bad patch आया था, but now he's looking, you know, super. देखिए हर प्लेयर पे बैड पैच आता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और जिसकी टेक्निक सॉलिड और अच्छी हो वो उस तरह की सिचुएशन से बहुत जल्दी निकलता है। मेरे मुताबिक ये थोड़ा इसने ज़्यादा टाइम ले लिया टू कम आउट ऑफ द सिचुएशन, क्योंकि 2.5-3 साल से सेंचुरी नहीं की हुई थी। एंड जो एशिया कप में जब व्हेन ही स्कोर्ड दैट 100, व्हेन ही स्कोर्ड दैट 70 ऑड, एक उसने दो रन किए थे, ही लुक लाइक द ओल्ड विराट। आई मीन कॉन्फिडेंस में उसका कोई मैच नहीं है कि जब उसका कॉन्फिडेंस हाई होता है उसकी बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट होती है। वैसे तो उसकी बॉडी लैंग्वेज एनीवे बड़ी तगड़ी होती है, इज़ अ फिटनेस फ्रीक तो है। सो यू नो इज़ एन अमेजिंग क्रिकेटर और टीम को भी लिफ्ट करता है। ही यू नो उसकी जो वो कहते हैं ना कि उससे लोग बड़ा उससे सीखते हैं, इवन विद इन द टीम। आई थिंक देयर लॉट ऑफ देयर प्लेयर्स, even when he goes away and play for other teams also, even locally भी
a lot of people learn, even the international team players, they go and look to talk to him to get his mind, that how he thinks. Yeah. Is a legend. I mean, is kind of a legend that who's going to still carry on play for another maybe 4 or 5 So years. his World Cup average, World Cup, सारे World Cups की average 88.75. This World Cup he scored 220 runs, also one of the Leading run scorers. And in all World Cups history, T20 World Cup Yes. history, he's now the highest run getter. It's just an icon, an institution of good batting, right there in the middle for India. How does his role now evolve from here, Misbah? Will he eventually, start mentoring the younger ones and, start saying, okay, now I have to set up these new guys up? देखिए ऑलरेडी जितने भी उनके यंग प्लेयर्स आ रहे हैं उनको अगर आप देखें तो आइडियलाइज करते हैं जो उसकी जिस किस्म की वर्क एथिक्स हैं, जिस किस्म की उसकी परफॉर्मेंसेस हैं, जिसकी बॉडी लैंग्वेज है, आई थिंक दैट इज़ फिनोमिनल। और ऑलरेडी उनकी पूरी एक जनरेशन को वो जिस तरीके से गाइड कर रहे हैं और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है इन द ग्राउंड कंसिस्टेंसी की, और जो वो डिसिप्लिन है ना सिर्फ बैटिंग का बल्कि ओवरऑल वो जो एक फिटनेस रिजीम है, जिस तरीके से आपने जाके ग्राउंड में जो बॉडी लैंग्वेज है, उस सारी चीज़ों में आई थिंक ही इज़ अ ग्रेट रोल मॉडल फॉर द उसका इंडियन देखो ना, क्रिकेट। दंड भी बड़ा है, 6 पैक भी है, वो तो वेजिटेरियन है पिछले 3-4 साल तो सानू गोश्त खुआ दोषी कर देंगे ने यहाँ कल्चर बता ही नहीं जाता ना। सारा फखर का कसूर सारा And Misbah, गोश्त का कल सारा lunch मामला order दे किया है, देते जाते मैंने हैं। order किया आपका था। कसूर नहीं है, आप मंगाते हैं ना चीजें, हलवा पूड़ी आता है, फलूदा आता है, इस तरह की समोसे चीजें आया। आती हैं। मैं खाता हूँ, नहीं कह रहे हैं हाँ। नहीं तो मैं कहूँगा नहीं नहीं, करती। मैं आपकी ये तारीफ तुम्हारा कर रहा हूँ। आई तो एग्री विद इसीलिए सर आप लोग भी रोकें अपने आप को। विराट की बात हो रही है, उसकी स्किल, उसकी मेंटल टफनेस, हर चीज़ को हम साइड पे करें। हमें सिर्फ ये डिस्कस करना चाहिए कि वो इतना कंसिस्टेंट कैसे है। वो इसलिए इतना कंसिस्टेंट है क्योंकि उसकी फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छी है। क्योंकि आपका दिमाग भी चल रहा हो, हर चीज़ आपको समझ आ रही हो, लेकिन आपकी अगर बॉडी साथ ना यार दे। क्या बात कर रहे हो मलिक यार, स्किल होता है सब कुछ, फिटनेस क्या होता है? Are you being sarcastic here, Misbah? That is Misbah being very छोड़ो sarcastic. यार, Very sarcastic. नहीं, एक सेकंड, नाम उसने शुरू में गलत ले लिया, नाम किसी और का लेना था, उसके मुंह से मलिक निकल गया। यार मुझे तो यही बताया गया कम से कम, जो मैंने फिटनेस की बात की है मुझे यही बताया गया। मैं उन लोगों के नाम अब यहाँ पे क्या लूँ, भाई स्किल सारा कुछ होता है, That's what they said to स्किल you. पे जीतते हैं, They, फिटनेस फिटनेस who कुछ is नहीं they? Misbah, I want to know who is they. If we tell you, we have to kill you. That's fine. Who is they? Who's the man? Who are we fighting? जहाँ मैं काम करता The था, establishment जिनके of साथ मैं cricket काम in करता था। Pakistan. मुझे भी पता है लेकिन मैं भी नहीं बताऊंगा। नाम आप भी नहीं लेंगे, चलें। चलो ठीक है, नाम ना लो, that's okay, but that's आप what they देखे say. ना, at अभी least आपके आपको- ब्रेक में आपके पास एक पिक्चर आई थी, Yeah. वो आपने देखी है ना, तो आप बता देना आप ना। वो अगर डोमेस्टिक में आपके ऐसे लोग खेल रहे हैं तो क्या मैसेज दे रहे हैं आप अपनी यूथ को? इसका मतलब फिटनेस कुछ नहीं है। अगर ऐसी फिटनेस के साथ आप नीचे खेल रहे हैं तो इसका मतलब है फिर ऊपर भी आपको खिलाने पड़ेंगे लोग, और आपको फिर ज़रूरत नहीं है फिटनेस की बात करने। That is, and you were right. What you were saying. सर वो रन्स बनाता है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा बनाता है। विराट की लेकिन बात कर रहे हैं। जी, विराट कोहली की, लेकिन उसकी एक और बड़ी अच्छी चीज़ है, आप जब से वो कैप्टनसी से हटा है, आप उसे फील्ड में हर हॉट स्पॉट पे खड़े हुए देखेंगे। शॉर्ट आप फाइन उसे। लेग पे नहीं खड़ा नहीं होता खड़ा उसके। होता ठीक जाके, है, छुप के नहीं जाके। तो ये बड़ी मेजर चीज़ें हैं। ये पता है यंगस्टर्स के लिए ये चीज़ें सीखनी चाहिए Even आप शेबी लोगों सीनियर्स को। के लिए। सीनियर्स बिल्कुल, एक्चुअली यंगस्टर्स से ज्यादा सीनियर्स के लिए सीखने Instead वाली of चीज है। making a face, I got dropped as a captain, blah blah blah. I just stand quietly at short fine leg. But he said no. I got dropped as a captain, fine. I'll play as a batsman, but I will be also the best fielder in Indian side. लेकिन ये चीज़ें वसीम भाई, चेंज होने वाली है ना पाकिस्तान To be में honest, थोड़ा। पाकिस्तान में भी कोई ऐसा प्लेयर नहीं है कि जो कप्तानी से उतारा गया है और वो स्टिल अगर वो खेल रहा है, वो अव्वल तो जब कप्तानी से उतरता है वो घर जाता है। लेकिन नॉर्मली कोई ऐसा अगर जब होता है कि जी कोई, मुझे तो नहीं अब याद पड़ता कि जो उतारा गया और वो खेल रहा है एंड वो कोई रोशनोवा बना रहा है। Yeah, you're probably right. It is debatable. Yeah. Debatable. तो ये सीखने वाली चीज़ है हम सब के लिए कि वो बंदा अगर यहाँ पे रन्स बने हो ना, तो बंदा ना
कॉलर यहाँ पे अच्छी चीज है, अगर आपको शौक है ये आप करो, तो ऊपर ही रख लो, लेकिन ऐसे अच्छा लग रहा है। लेकिन हमेशा टीम मैन रहो, टीम मैन रहो। आप रन्स बनाओ आप ना बनाओ, आप मतलब जब तक मैच नहीं खत्म हो जाता, उसकी क्वालिटी ये है कि 40 ओवर होते हैं पूरे, 40 ओवर वो चाहे 0 पे आउट हुआ हो, उसने रन्स बनाए हो, वो आपको उड़ता हुआ ही नजर आएगा। वो That's कोई it, कहीं ना that कहीं वो हेल्प करने की कोशिश करेगा। ये तो आपके जो प्लेयर सिलेक्ट हों, मेक श्योर ये करना चाहिए, जो करते धरते हैं सबसे पहले ये चीज़ देखेंगे वो टीम मैन है कि नहीं है। So, एटीट्यूड, माइंडसेट बहुत ज़्यादा काउंट करता है। ये T20 वर्ल्ड कप हिस्ट्री का ये स्टैट आपके साथ शेयर करता चलो। 1065 रन विराट कोहली ने अब तक किए सारे T20 वर्ल्ड कप्स के अंदर। दूसरे नंबर पे महिला जयवर्धने 1016 रन के साथ, क्रिस गेल 965, रोहित शर्मा 921 एंड देन दिलशान एट 897। आज सुबह तो ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ। सॉरी ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। मास्टर भी थे स्टूडेंट भी। एक लाइन नहीं छाड़ रहे। तू दस। कल से वो नहीं खा रहे ना, ऑयल वाली चीजें नहीं खा रहे, तो हर चीज चल रही है सही। ये जो भी समोसे भड़काए हैं इनके बारे में आपका क्या ख्याल है? भड़काए हैं वो और लो। ओए And with that, we're going to take a break right here on the Pavilion. Keep watching A Sports and Sports. We'll see you on the other side. Welcome back to the Pavilion. I'm Fakhri Alam. You're watching A Sports and Sports, our continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup. We're talking about the game between Bangladesh and India, which India just won. और उसके हवाले से हम बात कर रहे थे। मिसबा, आप सूर्य कुमार यादव की इस इनिंग्स के बारे में बात कर रहे थे। आज भी 187.50 की स्ट्राइक रेट। मैं नहीं कह रहा, पेपर पे लिखा हुआ है ये। जो सारे इन्होंने पढ़ दिए। पता नहीं क्यों मेरे स्टैट पे आप लोगों को इतना प्रॉब्लम है। जो स्टैट ये स्टैट्स हमारे लिए है। अब हम लोगों ने एक दूसरे से क्वेश्चन नहीं पूछना। He gets his time, he go through his phone। 30 रन ये 16 गेंद सूर्य कुमार यादव look good as well, हाँ? पाइना भी था तो चिक्के चौके किन्ने ने। वो नहीं लिखा I हुआ। think, वो लिखा हुआ नहीं है। दोबारा से वो नंबर 1 बैट्समैन भी हो गए एंड ही डिजर्व्स दैट। जिस तरीके से वो खेल रहे हैं आज भी, उस मोमेंटम को कहीं वो टूटने ही नहीं देते, बल्कि जो मोमेंटम आ रहा होता है उसको और ज़्यादा लिफ्ट कर देते हैं। यानी कि दूसरी तरफ दुनिया का टॉप क्लास बैट्समैन खड़ा है, सेट खड़ा है, और आके उसको भी आप एक किस्म का लगता है कि वो पीछे छोड़ वो अकेला ही खेल रहा है। और द वे वो जो हम कल भी बात कर रहे थे कि ऐसे एरियाज़ में वो शॉटें मारते हैं जहाँ पे नॉर्मली फील्डर नहीं होता। वो ऑकवर्ड एरियाज, जैसे पॉइंट के ऊपर से आप यॉर्कर आपको बॉल किया है और बीच में था वो बॉल, और आपने पॉइंट और थर्ड मैन के बीच में से यूं करके उस बॉल को खेल दिया। दोज आर द एरियाज वेयर नॉर्मली यू डोंट हैव द फील्ड। और ये नहीं कि वहाँ पे वो फील्डर रख लेंगे तो जहाँ से वो फील्डर निकालेंगे अगली तो वहाँ पे शॉट खेल दें। ये मैसेज भी बहुत अच्छा है कि अगर जो यंगस्टर्स हैं वो देख रहे हैं इनको खेलते हुए, तो वो अपने दिमाग में पहले से कोई शॉट नहीं सोचते। ये उनकी सबसे अच्छी चीज़ है। जिस तरफ बॉल आता है वो उस तरफ खेलने की कोशिश करते हैं। तो यंगस्टर्स के लिए ये लर्निंग पहले से ना आप सोचें, वो टांग रख के छिक्का नहीं मार सकते। पहले से ना आप सोचें। हाँ, जब आप सेट खड़े हुए हैं, आपने खेल लिया 5 बॉलर्स को ऑपोजिशन के, फिर आप फील्ड प्लेसमेंट को देख के उसके बाद आप ये कर सकते हैं कि अब उसने मुझे अगर फुल बॉल कराया था, जैसे मिड ऑफ पीछे है फॉर एग्जांपल, करेक्ट, तो चांसेस यही है कि वो आगे ही बॉल करेगा बॉलर, क्योंकि थर्ड मैन ऊपर है, शॉर्ट फाइन लेग ऊपर है, या मिड ऑफ ऊपर है तो वो थोड़ा शॉर्ट ऑफ लेंथ करेगा। तो इसीलिए ये बहुत अच्छी है कि जहाँ बॉल है उस तरफ आप खेलें। जी वकार, लेट मी कंपेयर इट विद आर बैट्समैन। तो पाकिस्तान की टीम के बैट्समैन हैं और जो इंडियन बैट्समैन जिस तरीके से खेल रहे हैं, या इवन जो आज बांग्लादेश खेली है, आपने जितने भी देखे हैं ना ये बैट्समैन, जो पाकिस्तानी बैट्समैन भी, वो ऑल दे लुक फॉर इज दे लुक टू प्ले ऑन द ऑन साइड। दे स्टार्ट फ्रॉम स्ट्रेट, little bit of straight and mid wicket, square, everything is this way. A bottom hand comes into play. आप इनकी बैटिंग देखेंगे कि ना, तो जो मलिक ने बात की है ना, यू गॉट टू बी एबल टू प्ले ऑल अराउंड द ग्राउंड। 360 पे आपको खेलना आना चाहिए, और जितना आप साफ ऑफ साइड पे खेलेंगे ना, यू गॉट मोर चांस ऑफ गेटिंग रन्स क्विकली। जो आप यहाँ खेलना शुरू कर देते हैं ना, देयर इज मोर चांस कि बॉलर आपको जल्दी रीड कर लेगा एंड ही विल बॉल यू आउटसाइड द ऑफ स्टंप और आप फंस जाएंगे। केएल राहुल ने आज एक छक्का मारा है जी शुरू में, जो उसने गेंद को किया, सिर्फ ये किया है और वो स्टैंड्स में गया एक्स्ट्रा कवर पे। फिनोमिनल शॉट। हमारे बॉलर मुझे ऐसे शॉट मारे ना,
I'll be दूसरी बॉल में भागने आऊंगा, मेरे ज़हन में 25 चीजें चल रही होंगी। और उसने हमारे उधर भी मार सिर्फ दिया, हमारी टीम में बाबर के अलावा, बाबर बहुत खूबसूरत खेलता है जब वो ऑन सॉन्ग होता है, वो जो कवर में साइड पे बहुत अच्छा खेलता है। कोई भी ऐसा बैट्समैन नहीं है जो इतना अच्छा खेलता है। Any reason can they improve? आई गेस सब कॉन्टिनेंट में खेल के स्लो लो विकेट्स खेल के ईजी होता है ना, बॉल ने ऑफ द विकेट कुछ करना नहीं है, बाउंस नहीं होना, तो इट्स ईजी टू जस्ट पिक अप शॉट। खेलो आप इधर खेलो, स्वीप मारो। यहाँ पे आप ये मारने जाओगे तो इट विल गो अप इन द एयर। आपने जितने भी आज बांग्लादेशी भी मारे, जिन्होंने यहाँ से शॉट मारी है, हिट्स द टॉप, गोज इन द एयर। एक और चीज ये केएल राहुल की बैटिंग भी साथ साथ में देखते हैं, बिकॉज अगेन ये आप जो बात कर रहे हैं वो उनकी बैटिंग में वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है। एंड यू विल सी दैट 6 दैट वसीम वाज थ्रोइंग। लुक एट दिस 6, पिकअप शॉट, पिकअप शॉट, Yeah. जबरदस्त Yeah. शॉट, See, that's offside. कट वाला बॉल मिला, उन्होंने कट खेला बट एज लगा, ये देखें व्हाट अ शॉट। फिर उनको शॉर्ट बॉल मिला, उनको पता था कि यहाँ बड़ी बाउंड्री है तो उन्होंने गैप में खेला और डरते नहीं है उठा के खेलने से। ये वो शॉट है। वाओ। और उठा के खेलने से डरते नहीं हैं। हमारे प्लेयर उठा के नहीं खेलते, हमारे कोशिश करते हैं कि नीचे इवन पुल भी मारेंगे तो इट्स डाउन। नो, इट हैज टू गो अप। जब एडलेड की बाउंड्री छोटी थी, नोबडी वाज कीपिंग इट डाउन, दे वर मेकिंग श्योर कि इट फ्लाइज आउट ऑफ द ग्राउंड। सो आई थिंक T20 क्रिकेट अब इस तरफ जा रही है। सो यू कांट जस्ट गो ओके मैं सिंगल करके, मैं इस सिंगल, अगर एक बॉल वहाँ चौके वाली है, हिट द बाउंड्री, इफ अनदर वन इज देयर, हिट अनदर बाउंड्री। अब तो आपको 20-20 के ओवर लेने पड़ेंगे, 18-18 के ओवर लेने पड़ेंगे, हम वो नहीं करते। वकार भाई कितना बड़ा डिफरेंस आप देखते हैं कि सेम सॉर्ट ऑफ बॉलिंग हो रही थी आखिरी 2 ओवर्स में नूरुल को, जी हाँ। लेकिन वो सिर्फ एक साइड ही जा रहा था। ऑफ स्टंप के बाहर जाकर वो कोशिश कर रहे थे कि मैं स्लॉग करूं स्क्वायर लेग या मिड विकेट की तरफ। हालांकि उन्हीं बॉल्स को अगर आप देखें केएल राहुल ने या सूर्य कुमार यादव ने, ऑफ साइड पे सिर्फ एक स्वीपर खड़ा है, लॉन्ग ऑफ है, पॉइंट थर्ड मैन दोनों ऊपर हैं। आप कहीं पे भी थोड़ा सा उधर जब फॉलो करते हैं, वो साइड भी अगर आप जहन में रखें, सेकंड लास्ट ओवर की 2 लास्ट बॉलें ऑफ स्टंप के बाहर थी, मिस हुई, इसी वजह से कि वो क्रॉस मारने इधर को गए। इनको जब ये बॉल मिलता है सूर्य कुमार यादव को या इंडियन जो भी प्लेयर हैं, इवन विराट कोहली को, वो उसको उधर ही प्लेस कर देते हैं। देन बॉलर इज अंडर प्रेशर। इवन 16 रन्स भी थे और आपने पहली गेंद पे छक्का मारने के बाद अगला एक चौका मार दिया, गेम इज ओवर, गेम शुड बी फिनिश्ड, गेम शुड बी फिनिश्ड। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, शुरू में भी हम लोगों ने बात की थी, ये देखे वो ये एक बॉल था कि वहाँ मिल गया, ये मिल गया। उसके बाद देखें, उसके बाद वो बिल्कुल एक तरफ ही जा रहा है। ये अगर ऑफ स्टंप में मारने की करता, हटके थोड़ा सा, थोड़ा तो लग रूम बना सकता के था। एक्स्ट्रा कवर ये जो चौका मारा था यही किया था, बिल्कुल। और एक और चीज़ देखें कि वो अपनी पोजीशन इतनी जल्दी बना लेता था कि बॉलर अभी, मेरा मतलब है 4 कदम क्रीज से पीछे होता था तो वो अपनी पोजीशन में खड़ा है। सो ही नोज कि उसका टारगेट ये है कि मैं यहाँ करूँगा, लेंथ की तो इसने मुझे छक्का मार देना है। लेकिन अगर मैंने इसकी खुच्चों में जो कहते हैं आगे यॉर्कर लेंथ की या ऑफ स्टंप के बाहर की, तो इज गॉट नो चांस, 0 चांस। जहाँ थोड़ा पीछे गिरा लग गई, क्योंकि उसका बैट इधर मारने, हाँ, इधर से आ रहा है, इधर मारेगा, बैट इधर से आ रहा है, तो वो इस बॉल को यहाँ तो मार ही नहीं सकता क्योंकि उस फ्लो ही यूँ आ रहा है। तो वो उन्होंने राइटली, मेरे ख्याल में आप भी बात कर रहे थे, वसीम भाई भी, इवन मलिक ने भी किया, इसको बीच वाला यॉर्कर हुआ तो नो चांस। विराट कोहली हैज बीन, हम बात कर रहे थे विराट कोहली की, he's been phenomenal, he's a legend and an icon, no question about it, a whole institution। आज भी बड़ा जबरदस्त स्कोर किया है उन्होंने, और इसके सवाल अच्छा कि स्टैट मेरे सामने नहीं रखा हुआ था, बहुत अच्छा, वेल प्लेड। उन्होंने देख लिया था कि वो पेपर आपने नीचे गुजार दिया, इसीलिए उन्होंने किया 64 किया 44 बॉलों। गुड चेक, गुड चेक। अभी नहीं है, गुड चेक, हेलो नहीं है, 44 गेंदों पे 64 रन Carry बनाए। on, और carry बताएं, नॉट आउट, रेट कितना था? और अभी भी नहीं है मेरे सामने कितने चौके थे, हाँ? कितने चौके? ये नहीं मुझे पता, वो आता भी नहीं है हमारे पास लिखा हुआ भाई स्टैट। आता है, एक छक्का, 8 चौके, 1 छक्का। और बताएं, 145 ये पीछे से जो आपको आ रहा है ना, 145.45 का स्ट्राइक रेट, और 10 और 10 सुबह कितने बजे उठा था? और 10 सुबह कितने बजे उठा था विराट? एक चीज है कि विराट इतने अच्छे और इतने सेंसेशनल किस्म के प्लेयर बनते जा रहे हैं कि तकरीबन हर चीज कर सकते हैं वो, और लग यूं रहा है कि अब एम्पायरिंग भी वो खुद ही कर सकते हैं, क्योंकि आज फिर उन्होंने नो बॉल का फौरन इशारा दिया। ये जरा देखें, इस वाले मैच में भी और पिछले वाले मैच, हमारे वाले मैच, ये जरा आपके सामने आएंगे। लुक दिस इज, ये पाकिस्तान वाले मैच में ये इन्होंने शॉट मारते साथ ही नो बॉल का इशारा कर दिया था, ये देखिए। प्रेशर क्रिएट किया ना, प्रेशर। हाँ, और जिस पे बाबर ने बड़ा वो किया था। आज वाला भी जरा इसके बाद हम आपको दिखाएंगे, एंड इट्स द सेम एम्पायर इन द लेग एम्पायर
Erasmus. वो एक पेपर पे लिखा हुआ है। So same umpire कार में Erasmus. बता रहे हैं, पेपर पे नहीं है। And ये आज का जरा देख लें, वसीम, what do you think? I think it's just asking for no ball? Yes, he did. He we are asked for a just no ball today again. हम literally बाल की खाल उतार रहे हैं. It's a just second कई दफ़ा bounce होगा. नेचुरल होता है कि बैट्समैन जब देखता है वाइट बॉल और बाहर को एक दफ़ा देखता है या इशारा कर देता है. I don't know आजकल का लॉ क्या है, ये हमें प्रेजेंट प्लेयर बता सकेंगे. ये But वो उन्होंने जो था तो ना- अंपायर ने जो सिग्नल दिया था वो ये शोल्डर हाइट वाला सेकंड बाउंस है। Second bounce T20 में एक जो है वो उस bounce वजह है। से उन्होंने खाली ये अंपायर देखिए, को वो ये आज- किया है। आज- याद But I कराया. love it that his look, his awareness. He's through the shot. अभी वो बैट जो है स्विंग में ही है और उनका नो बॉल वाला हाथ उठ जाता है विराट का फौरन. मेरे वो ख्याल में basically- शाकिब उल हसन भी यही कह रहे हैं कि आपने बोला है तो इस वजह से अंपायर ने जो है नो बॉल दे नो दी। बॉल दे दी है. साकिब यही उसको कह रहा है कि आप बैटिंग करें, अंपायर्स को अंपायरिंग करने दें. तो आई थिंक वो भी वही बात कर रहा है जो हमने की है कि इफ़ यू गोना कॉल समथिंग एंड यू गोना पुट प्रेशर ऑन द अंपायर, देन ऑफ कोर्स इज अ बिग नेम. विराट कोहली इज अ मैसिव नेम इन क्रिकेट, सो अंपायर समटाइम कहीं ना कहीं प्रेशर तो ले जाते हैं. All right, and with that, it's actually बात करनी थी बेस्ट बॉलर की हम बात कर रहे थे. शुरफुल ने आज बड़ी ज़बरदस्त फिगर्स उनकी गई हैं. क्या हुआ? You know, you've always advocated that he should be played, he should be given more. He was given a lot more today. Yeah, they played him today, and I wasn't expecting him to play in place of Fizz, you know, the other left arm fast bowler. You know, when you don't play on a regular basis, these things can happen. And don't forget, he was bowling to players who are world class, and of course he was very, very nervous. You could clearly tell from his bowling all those no balls, and had a terrible. I mean, some really good shots, some of them. अगर ये नो बॉल्स ना की होती जी. इफ्स एंड बट्स तो हैं तो शायद मैच का सिनारियो डिफरेंट बिल्कुल होता होता है, ऐसे 3 एक्स्ट्रा बॉल्स उन्हें करनी पड़ी, उस पर छक्के भी पड़े एक आधी नो बॉल के बाद Yeah. फ्री हिट पे. सो या लाइक विकी सेड अर्ली ऑन कि आजकल की इस फॉर्मेट में स्पेशली इट्स काइंड ऑफ अ I think it was simply they literally targeted him. They knew that if he plays, he's going to be the nervous one in the team. I really like Shoreful. I think he's got talent. It's just that one of those days it happened to the best of the. And let's take this to Misbah ul Haq. Misbah, what should be forward for Shakib al Hasan? Well done. He got him off guard. That's all. That's all idea. Gee, Misbah. I think still they have one game to go. फिलहाल तो उसके बारे में सोचना चाहिए. And obviously his form with the bat at the moment मेरे ख्याल में बांग्लादेश को भी काफ़ी नुकसान हुआ है. उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी बांग्लादेश की, स्पेशली आज के मैच में भी, but it's not going their way. So in the last game हम तो यही चाहेंगे अगेंस्ट पाकिस्तान वो खेल रहे हैं कि अभी फॉर्म ना ही आए, बाद में देखी जाएगी. But I think still he is one of their best all-rounders or batsmen, one of the senior batsmen. अभी भी उसका जो रोल है बांग्लादेश की टीम के लिए आगे चल के, that is going to be important for I them think मिसबा because ये young team अगर इस बेचारे जैसे फॉर्म की आपने बात की शाकिब की, आई थिंक अगर मैं होता मैं इसको 5-6 पे बैटिंग कराता, 4 पे मैं किसी और को भिजवाता ताकि 5-6 पे कम से कम ओवर कम मिले. इसको मोस्टली ओवर लंबे मिलते हैं ना हर दफ़ा, तो उसको भी आइडिया नहीं है. इज़ अ गुड हिटर ऑफ द बॉल, वी हैव सीन. वो ये भी मारता है, ये भी मारता है, तो शायद दैट कैन वर्क इन माय ओपिनियन. Wasim bhai, his all success in T20 cricket is at number 3. Yeah. Okay. And Shoaib Malik, good morning. And it's time for a break here on the Pavilion. We'll see you on the other side. याद रहे कि आपसे कुछ देर बाद आज तो Pavilion के सवालात आपके हम लेंगे और वापस आके बात करेंगे नेदरलैंड्स और जिम्बाब्वे के मैच की, जहां पर वकार यूनिस की प्रेडिक्शन 100% दुरुस्त रही. देखते रहिए द Pavilion. आपका वे फॉरवर्ड बताओ. Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखरान. आप देख रहे हैं Sports 10 Sports. Our continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup. I've got Shoaib Malik, Misbah ul Haq, Waqar Younis, Wasim Akram with me, and we were talking about the India-Bangladesh game. Now let's move on to the game that we had earlier today. It was Zimbabwe versus Netherlands. और Waqar Younis ने आज expert predictions में
बोला था कि नेदरलैंड्स जीतेगा और मैंने फिर इनसे सुबह ही पूछ लिया था कि व्हाई डू यू थिंक दैट वुड बी एंड ही वाज राइट द पिच वाज अंडर कवर्स देयर वाज रेन अराउंड and the conditions definitely helped the Netherlands bowlers. Yeah, and also Zimbabwe previous match जो ना वो हारी हुई थी और they were a little bit down also और you know Netherlands bowlers they're steady bowlers और इस तरह की conditions में जब घास हो तो I think fresh pitch हो तो there's always a chance कि वो जो English conditions जो होती है ना उस तरह का हो जाता है and exactly that happened. Yeah. Ball move around किया Zimbabwe batsmen couldn't cope with that and they just kept losing wickets और जो एक दो बंदे उनके फॉर्म में थे रजा वंस अगेन नॉट देयर सो दैट्स व्हाई दे लॉस्ट ये मैच समरी पे जरा नजर डाल लेते हैं हिज मैच समरी फॉर यू नाउ जिम्बाब्वे इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट एंड नाउ एवरीबॉडी आई मीन उस वक्त भी हमारे एक्सपर्ट्स यहाँ पर पैनलिस्ट ने बोला था कि दैट इज a bit of a gamble. It's a strange decision, but they elected to bat 117. That's what they put up. Sikandar Raza there again contributing with the bat. Williams also, but nothing spectacular from Zimbabwe because the Netherlands fast bowlers were all over them. सारे गुल उन्होंने हमारे खिलाफ चला दिए थे। जी सारे सही है और जवाब में 120 पे and you know you said this Wasim before we went into this game that you know Netherlands will probably like to go home with a win with some good memories and that's how exactly Congratulations to them. They did really well winning against one of the top top means के जो ऊपर से टीमों में आती है अच्छे आराम से qualify करती है and again man of the tournament for Zimbabwe got to be Sikandar Raza today 40 of 24 deliveries low scoring game और Netherlands played very beautiful cricket easy cricket कोई प्रॉब्लम नहीं लगी चेज करने आए हैं बड़े आराम से उन्होंने चेज किया है एंड दिस गाय इज फॉर्म ऑफ हिज लाइफ द वे ही इज प्लेइंग हिज क्रिकेट विद बैटिंग विद bowling he is a gun fielder anyway and I think I was listening to one of his interviews he was saying the reason he is doing so well because he concentrated on his physical fitness like Shoaib Malik हमें बताता है कि कितना ज़रूरी है इवन बैट्समैन के लिए फिजिकल फिट होना और इसकी बेस देखें इसकी शॉट की सिलेक्शन देखें और ये गेम चेंज नहीं की इसने 3 जल्दी भी आउट हैं ये अंदर जाके इसने अपनी गेम ही खेली है एंड दैट्स व्हाई ही इज बीन सो कंसिस्टेंट एब्सोल्युटली शोएब आपने आप फिटनेस के ऊपर आप निस्बत दोनों जो है बहुत ज़्यादा वो करते हैं यू बाय एग्जांपल यू नो इन्वेस्ट सो मच इन योर ओन फिटनेस बट हियर्स अ क्वेश्चन फॉर यू when we were talking about Virat Kohli and you know we keep talking about him being super fit Wasim and everything and all that but with all his fitness he did go through a bad patch. He did go through अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई भी मैंने तो अपनी लाइफ में कोई ऐसा एथलीट नहीं देखा नॉट जस्ट अ क्रिकेटर इफ अगर हम दूसरी स्पोर्ट्स भी देखें तो आप पे डाउनफॉल आता है ठीक है लेकिन उसमें ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आपके जो अराउंड लोग हैं वो आपको कैसे उठाते हैं वो आपको कैसे निकालते हैं उस चीज़ से और आई गेस वो फिज़िकल फिटनेस उसकी हमेशा से विराट की थी जो कि हमेशा उससे पॉजिटिव वाइब्स जो है ना वो क्रिएट करती है ये जो फिज़िकल फिटनेस है अगर आप फिट हैं एंड आई एम श्योर कि ही इज़ बीन डिस्कसिंग अ लॉट आई एम श्योर जिससे भी उसने किया होगा ये डिस्कशन और बैड पैच ये लाइफ का हिस्सा है लेकिन एक चीज़ आप देखें कि उसकी फिज़िकल फिटनेस थी तो वो जो कम बैक किया उसने वो सेम विराट बन गया अगर फिजिकल फिटनेस ना होती तो बहुत कम चांसेस थे कि वो सेम ढीला छोड़ देता तो ऐसे रिजल्ट्स नहीं मिलने थे तो आई गेस और आल्सो आई थिंक ही सेट गोल्स फॉर हिमसेल्फ और उनको अचीव करने के लिए आई गेस इट्स 24/7 जॉब ये वो नहीं है कि मैं दिन को कुछ कर लूँ शाम को कुछ कर लूँ या सुबह कुछ कर लूँ इसमें यह है कि आपको डिसिप्लिन लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप प्रोफेशनल एथलीट हैं और अगर पाकिस्तान में होता तो ये भी मशवरे उसको मिल जाते कि गोश्त छोड़ दिया है या वजन थोड़ा 4-5 किलो बढ़ाओ तो फिर जो है ना पावर आएगी पावर इस वजह से परफॉर्मेंस नीचे यूजुअली इस किस्म के डिफरेंट जो है मशवरे आने शुरू हो जाते हैं जो कि बिल्कुल हकीकत से दूर था लास्ट ईयर बिफोर मैंने सुना था कि कपल ऑफ आवर क्रिकेटर्स दे आर नॉट लूजिंग वेट बिकॉज दे बीन टोल्ड by their random friends or people they roam around with कि भाई जो वजन कम किया तो पावर खत्म हो जाएगी लेकिन तुसी की इट्टा चुक नहीं आने इसीलिए ना मैं वकार भाई की बात पे ज़रूर जाऊंगा उसके विराट के केस में ये भी है कि वो एजुकेटेड भी है तो आई गेस इट बिकम्स अ लॉट मोर इजियर टू डील विद यू नो स्पेशली टफ टाइम्स तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि अवेयरनेस देनी है अपने यंगस्टर्स को हमारा कल्चर ऐसा है कि जिस हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं या आप एक ही काम कर सकते हैं आप पढ़ सकते हैं या आप खेल सकते हैं बट अब हो सकता है क्योंकि
लेट आवर्स में भी अब स्कूल्स लगते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें न्यू एडिशन हो But चुका I है। think even on tours, so talk about Pakistan team, even on tours you learn a lot. If you socialize and get to know the local culture, you know, उससे भी बड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है, आप सीखते हो, अंग्रेजी भी आ जाती है, बात करते रहोगे आती जाएगी थोड़ी बहुत। इसीलिए वसीम भाई मुझे ये लगता है कि अगर आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं हो रही ना, तो जहाँ से भी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं आपके प्लेयर्स को लीग्स खेलने की, तो भेजें, ज़रूर भेजें। बिल्कुल। वकार, 15 विकेटें आज गिरी हैं इस वाले मैच में और सारी की सारी जो है वो फास्ट बॉलर्स नहीं है। इवन सिकंदर couldn't pick up a wicket today. It was all fast bowlers. दैट्स गुड। Yeah, you should be proud as a fast मैं bowler. और बात करने जी, लगा जी, था। जरूर। मैं फिटनेस पे ही बात हो रही थी तो आई जस्ट वांटेड टू चिप इन। मैंने मेरे ख्याल है 2-4 दिन पहले भी एक बात की थी कि हमारे वो फिर एजुकेशन वाली भी बात आ जाती है कि बच्चों को समझ नहीं आती है, यू नो, दे गॉट सच अ फ्यूचर अहेड ऑफ देम। अगर आपने क्रिकेट से मोहब्बत की है और आपने बचपन ये शुरू किया है कि यू वांटेड टू बिकम अ प्रोफेशनल, और उसके बाद आपको सब कुछ सामने नज़र आ रहा है, इट्स राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू। सम ऑफ द प्लेयर्स वी ऑल नो दैट, आई डोंट हैव टू नेम देम। आई नो ये दे यंग, सम ऑफ देम आर रियली यंग, समझ आ जाएगी, लेकिन बाद में ये पछतावा होगा क्योंकि वंस आपका ये टाइम निकल गया तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो आपके सामने फ्यूचर है, आपके सामने सिक्योर फ्यूचर है, और आपका देयर इज अ अपॉर्चुनिटी एंड चांस टू बिकम अ स्टार। You know, it's a massive opportunity. So please don't lose that. Just put in hard yard. It's not going to kill you. All you need is a hello. All you need is a just, you know, focus yourself, discipline. ये आपके सामने बंदा बैठा है. He always talks about it. कि you know how important the fitness is. So kindly work on that and get back in the team and just, you know, become a star. Why not? There you have it from the legend himself, Waqar Younis. You heard that. And with that, let me take this to you, Waqar. What should be the way forward for Zimbabwe from here on? Zimbabwe, I guess it's very hard for them to qualify from here. I think they're out of the tournament, but I think they should feel proud of themselves. They have beaten some quality sides in the tournament. They've beaten Pakistan. You know, they're still a very young side. They need to just go back and keep working. And they are getting better. I mean, एक टाइम पे तो बहुत अच्छी टीम थी. I think 99 में तो they did qualify to the 90s में they were very good. yeah, they were very good. And then, you know, political side of it, and then team थोड़ा नीचे चली गई. Now this again sort of Rising, yeah. Coming back up. So I think there's plenty to play for. Just, you know, there's so many World Cups coming up, and keep working and keep, you know, climbing. All right, though, so we're going to take another break here on the pavilion. But when we come back, अब वक्त हुआ है आपके सवालों का। ये हैशटैग देख लीजिए, आपकी टीवी की स्क्रीन पे है, Ask the Pavilion, हैशटैग Ask the Pavilion। इस पे आपके पैगामात जो हैं वो मैसेजेस हों, कमेंट्स हों, सवालात हों, वो हमें भेजिए, और हम अब इस ब्रेक के बाद अपने लेजेंड से यहाँ पर आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो देखते रहिए स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। विल सी यू ऑन द अदर साइड। वेलकम बैक टू द पवेलियन। मैं हूं फखर आरम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स, कंटिन्यूड कवरेज ऑफ द ICC Men's T20 World Cup in Australia. I've got with me the legends, the icons, Shoaib Malik, Misbah-ul Haq, Waqar Younis, Wasim Akram. और आस्क द पवेलियन का सिलसिला जो है, हैशटैग आस्क द पवेलियन, इसका सिलसिला आप लोगों के साथ बाकायदगी से शुरू करते हैं। और आज छोटा सा एक इसमें हमने एक चीज़ भी की है, और वो ये की है दोस्तों कि क्योंकि मेरे यू नो आई एम ट्राइंग टू गो थ्रू ऑल द क्वेश्चंस एट द सेम टाइम व्हाइल आई एम टॉकिंग हियर एंड ट्राइंग टू रन द शो एज वेल, इट बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट, एंड सो आई हैव आस्क्ड द पैनलिस्ट्स एज वेल। ये लोग भी अपने अपने फ़ोन्स पे ट्विटर खोल के बैठे होंगे, और ये भी साथ साथ में स्कैन कर रहे होंगे सवाल, ताकि सिर्फ मुझे ही स्कैन करके। Let's start off with you, Wasim, It's please. obviously Twitter नाम है Sherlock King's Gambit / or something. उनका क्वेश्चन क्रिकेट पे है, उन्होंने लिखा है, मुझे वकार हम सबसे पूछा है, कैन यू प्लीज टेल अस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ चाइनामैन, रोंगन, गुगली, दूसरा और वेरिएशन है कोई स्पिन में? मैं कागज काट लूँ। वो सही है, मैंने कागज तीसरा काट भी के लिख निकाला लो। था। Yeah, Vicky, first is Googly China. For Chinaman. By the way, you can't call Chinaman anymore. Left arm leg spin. Left arm leg spinner. So I said it 10 times already, so apologize. Left arm leg spinner, Rongan, Googly, दूसरा.
ठीक हो ऑलराइट चले जी एंड फ्लिपर भी कर दे इसमें जस्ट इन केस अदर वेरिएशंस ओके जी या और कुछ जी हाँ जी जवाब फ्लोटर बस इतने बड़े नहीं मेरा हाँ जवाब ये है कि चाइनामैन तो अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया वसीम भाई ने कि लेफ्ट आर्म जो रिस्ट स्पिनर को चाइनामैन कहा जाता है और उसी को जो वही जो अगर उल्टा बैक ऑफ द हैंड से करता है तो उसको गूगली कहा जाता है। गूगली का मतलब ये होता है कि जो राइट आर्म लेग स्पिनर होता है जब वो बॉल उसका जो ऑफ स्पिन होना शुरू हो जाए फ्रॉम द बैक ऑफ द हैंड दैट इज़ अ गूगली। उसी तरह उनका एक और वेरिएशन होती है जो टॉप स्पिन जिसको बोलते हैं वो भी पीछे से ही निकलता है बट ये पूरी रिस्ट नहीं स्पिन उस पर लगती हाफ लगती है वो गेंद सीधा रहता है और बाउंस होता है दैट्स कॉल्ड फ्लिपर। दूसरा जो ऑफ स्पिनर करते हैं आजकल जैसे सईद अजमल ने आपने देखा होगा और दूसरा अपना सकलैन को देखा होगा। ऑफ स्पिन बेसिकली इज़ दिस मोशन ओके दिस मोशन इज़ ऑफ स्पिन। जैसे पेसर की ये मोशन होती है ना ऑफ स्पिनर का ये मोशन होता है। बॉल को कोशिश करनी चाहिए कि बॉल को सीम पे गिरे तो ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा बाउंस मिलता है। और दूसरा ये होता है कि इसी को आप जब ऑफ स्पिन करते हो तो आप जो रिस्ट इस तरह जाती है लेफ़्ट टू राइट लेकिन जब आप दूसरा करते हो इट कम्स फ्रॉम द बैक ऑफ द हैंड। सो इट्स बेसिकली अ गूगली एन ऑफ स्पिनर बॉलिंग अ गूगली। उसमें समटाइम इट इज़ अ हार्ड जॉब बिकॉज आपकी रिस्ट जो है उसको पूरा मुड़ना पड़ता है और जब आप पूरा मोड़ते हो और फिर उसको पुश करते हो तो सम टाइम आपकी जो ये एल्बो है ये थोड़ी सी बेंड हो जाती है जिसमें आपने देखा है कि दूसरा बॉलर जो बॉलर दूसरा बॉल करते हैं उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम ज़रूर आता है। और कौन सी दैट्स इनफ मैं थक गया हूँ। That's fair enough. राय इमरान का सवाल है मिसबा आपसे राय इमरान का सवाल है कि हाउ मच वुड कामरान गुलाम एंड तैयब ताहिर हैव टू परफॉर्म टू गेट इनटू द साइड? दे आर पॉसिबली बेस्ट परफॉर्मिंग मिडिल ऑर्डर बैट्समैन इन आवर डोमेस्टिक सर्किट। इनको और कितना परफॉर्म करना पड़ेगा? कब ये सेलेक्टर्स की नज़र में आएंगे? कब इनको मौका मिलेगा? अगर ये आई डोंट नो व्हाट देयर स्टैट्स आर सो आई कांट रियली कमेंट ऑन दैट। आई थिंक कामरान गुलाम तो पिछले 2-3 सीज़न से बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है और सारे फॉर्मेट्स में कर रहा है तो ही डिज़र्व्स अ प्लेस कहीं ना कहीं आप वाइट बॉल क्रिकेट में भी और टेस्ट क्रिकेट में भी। मैं समझता हूँ कि जिस तरह की उसकी टेक्निक है मिडिल ऑर्डर में पाकिस्तान को ज़रूरत भी है तो वो कर सकता है और स्पेशली उसके साथ बॉलिंग भी है। ऑब्वियसली तैयब ताहिर अभी फर्स्ट सीज़न है जिसमें इतने ज़्यादा उन्होंने रन्स किए हैं बट ऑब्वियसली सेलेक्टर्स को देखना चाहिए कि कहाँ पे ज़रूरत है पाकिस्तान को और कौन फिट इन। Okay. This question is coming from Cricket Anurag. Cricket Anurag, Twitter handle Honey. Or I love your show in India. Thank you very much. Created this account only to ask my question to Waseema Akram. और उन्होंने पूछा है how did you land upon Gideon Hay to help you with your book Sultan? How was the experience working with him? And any other interesting stories while writing the book? Not about the book, but while writing the book. Gideon Haigh is one of the best writers. I never knew him before. Obviously, I heard his name before. But how did you meet him? It's Shanira, my wife, actually introduced me to him. I think she knew one of his friends, and then I met him. A very nice guy, simple guy, and a very thorough professional. He had his homework done. Whenever we used to sit together for 2-3 hours every day, when I went to Australia a year and a half ago, 2 years ago, he was ready with the things he remembered, I don't even remember. So that shows that how much work he's done on my book. The games he remembered, I didn't remember. If I wanted to, मुझे कुछ याद करना था, मुझे याद नहीं था, वो suddenly कंप्यूटर से रखा, वो साथ ऐसे करके सब कुछ मुझे उसी वक्त incidents, games, wickets, everything. He was brilliant. So any story while working on the book? Not really. Mostly it was COVID times, so we were on Zoom while in the same city. But eventually we met. But he just loves his cricket, still plays his cricket. He's got his club. He goes to practice every day. So yeah, he's a cricket nut. All right. Abdul Wahid ka sawal hai. It's Abdul from London, UK. Will we see Waqar and Misbah Bhai in PSL as coaches? Would love to see you guys back, and we are very proud of you, Misbah Bhai, as coach, captain, and batsman. You served well. Ignore seasonal fans. Right, Misbah and Waqar, would you be coaching in the Pakistan Super League coming up soon? I've got a contract of commentary during that PSL, so Okay. I won't be part of the coaching staff. No. All right, Misbah. अभी तक तो कुछ डिसाइडेड नहीं है, लेट्स सी। Okay. All right. So let's see. So you're open to the idea of coaching. या
राइट, एनी क्वेश्चंस शुएब? मैंने खोलने की कोशिश की, वो आ गया आस्क द पुलिस। आज द पुलिस, मैं पूछने लगा था उनको। आज तो पुलिस वाला सवाल पूछ ले तू, चल चल। आज तो पुलिस वाले भी देख रहे होंगे, कोई ना कोई सवाल हो पुलिस से तुम करना चाहते हो तो हम कर सकते हैं, यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है। Okay, ask this question to your panelists. After every delivery, okay, we've already addressed this, so I'm not going to talk about this. No need to talk about this. जिस अटैकिंग माइंड के साथ इंडियन प्लेयर्स बैटिंग करते हैं, सॉरी, मोइज़ हुसैन का सवाल है कि जिस अटैकिंग, और सबके लिए है कि जिस अटैकिंग माइंड के साथ इंडियन प्लेयर्स बैटिंग करते हैं, ऐसी अटैकिंग बैटिंग हमारे प्लेयर्स क्यों नहीं करते? हम हर वक्त डिफेंसिव क्रिकेट क्यों खेलते हैं? So Shoaib, let me take this to you. आई गेस ये बेहतर रहेगा अगर कोचेज इनका जिन्होंने Alright, कोचिंग coaches, वो जवाब let's take it to you. या आप टेक्निकल जवाब दे देना, तो हम तो चलो कोचिंग मुझे आप टेक्निकली मुझे ये लगता है कि बाबर को निकाल के जो मैंने असेस किया दूसरों के, उसमें शान एक ऐसा बैट्समैन है जो खेलता है सारी जगह पे, लेकिन वर्ल्ड कप में मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा शायद उनका नंबर नहीं था, तो वो ज़्यादा वो भी ऑन साइड की तरफ जा रहे थे। लेकिन मुझे ये लगता है कि सिर्फ फ़र्क इतना है कि एबिलिटी वाइज या स्किल वाइज वी आर नो लेस, लेकिन सिर्फ हाफ ऑफ द ग्राउंड यूज़ करते हैं। अगर सारे एरिया को यूज़ करना शुरू कर दें तो मेरे ख्याल में सेम रिजल्ट्स हैं जो दूसरे बैटर्स के आ रहे हैं। All right, okay. And you want to add anything to that, Misbah? Fine. Okay. Okay. Ask the pavilion, Arshad Shahid, when will we stop picking openers as top order and also as middle order? I suppose this topic has been under discussion for almost 3 weeks on this show as well. Everybody knows what it is. अब वापस आएंगे selectors वगैरह जब देखेंगे, I suppose it's in their hand. We can only, suggest on television. Yeah. आलमगीर खान का ये सवाल है और वसीम एंड वकार, ये सवाल बार बार आता है, बहुत दफ़ा ये रिपीट हो रहा है पिछले सारे दिनों से कि हमारे बॉलर्स जो हैं वो यॉर्कर्स क्यों नहीं ज़्यादा इस्तेमाल करते और एक्यूरेट यॉर्कर्स क्यों नहीं हो पाते हैं? ये करता है, बेस्ट यॉर्कर है हमारा हारिस राउफ, एंड देन ऑफ कोर्स शाहीन. He hasn't played any game before the World Cup, so वो रिदम आते आते, doesn't matter कितनी उम्र है, बॉलर को जब तक 2-4 प्रॉपर मैच, प्रैक्टिस मैचेस भी नहीं, प्रॉपर मैच नहीं खेलता, उसका रिदम नहीं आता. So we have one of the best ones in the world right now. एक और चीज़ है कि साइड बाउंड्रीज बड़ी हैं मोस्टली इन वेन्यूज़ पे, तो हो सकता है कि वो कोशिश ये कर रहे हों, सामने की छोटी हैं तो वो आगे ना बॉल कराए जाएँ, वेरिएशन यूज़ की जाए और बिग पॉकेट्स जो है वो की जाए. इफ यू आर लुकिंग एट के 90s के आपको यॉर्कर्स मिलेंगे या इमरान भाई के ज़माने के यॉर्कर्स लगने चाहिए, सरफराज जैसे मारता था या शुएब या हम लोग जैसे करते थे, तो वो अब आपको वो नहीं दिखेगा. वो इसलिए नहीं दिखेगा, वो ये नहीं कि पाकिस्तानी बॉलर नहीं करते, वो आपको कहीं पे भी नहीं दिखेगा, उस रेगुलरिटी से कभी भी नहीं मिलेगा. वो इसलिए कि अब आपने 50 ओवर क्रिकेट में 2 नए बॉल लगा दिए, बॉल उतना रिवर्स नहीं होता, और जब बॉल रिवर्स नहीं होता है तो उस तरह के यॉर्कर जो आप 90s के बात करते हैं एंड में वो नहीं लग सकते, और डिफेंसिव बॉलिंग हो गई है. Cricket is changed. So it was a different era of cricket, Yep. and now it's a different thing altogether. Ashad Shahid, ASHHAD, Ashad Shahid, आपका सवाल है और आपने वसीम भाई, do you think that we need to play Hasnain in place of Shaheen against South Africa in tomorrow's match? Yes, it's easier, Arshad, yeah? Ashad, it's very easy to give a suggestion from sitting here. I don't know वहाँ पे क्या circumstances हैं, क्या उनकी planning है. But yeah, I'll rather have a 100% fit bowler than my best bowler who's not 100% fit. Okay. So और देखिए जैसे आज for instance अगर हैदर से आपने खिलाना है for instance और थोड़ा प्रॉब्लम है उसको आखिरी 4 ओवर में बॉलिंग करने का, तो आज जैसे 4 ओवर इकट्ठे तो नहीं, जैसे तशकिन से 4 ओवर इकट्ठे करवा दिए कप्तान ने ताकि अगर विकेटें मिलनी है नए गेंद से इसको मिल जाए, तो आप हसनैन को 14 ओवर से पहले 4 ओवर उसके करा दो, आपके पास उसके बाद शाहीन भी आ जाता है, नसीम भी है, अगर जो भी 3 खेलेंगे जी, और फिर वो वो भी है वसीम जूनियर भी है. उसके लिए ये तो ज़रूरी है कि वो सीखे. उसकी इफेक्टिवनेस अगर नए बॉल से भी उतनी है जो नॉर्मली शाहीन आउटस्टैंडिंग विद न्यू बॉल, वो पहले उसके 2 ओवर है, आपको आधा मैच तो वहीं पे आपका बन जाता था, तो वो देखना ज़रूरी है वहाँ पे कि क्या वो ओवर उनके हैं, अगर हैं तो ओके फाइन. अगर 4 फास्ट बॉलर खेल रहे हैं ना किसी भी टीम में या हैं, पाकिस्तान भी खिलाए, तो अगर आप समझते हैं कि एक नए बॉल से बॉलर बहुत अच्छे बॉल करता है और उसको बॉल कराने चाहिए और उसको कराते चले जाना चाहिए, तो इसमें कोई हार्म नहीं है. आई थिंक जो बॉलिंग अच्छी कर रहा है उसको करा देना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो,
क्योंकि लेटर ऑन आप उसको कवर कर लेते हो अगर 4 फास्ट बॉलर हो, अगर 3 हो फिर आप फंस जाते हैं जैसे आज बांग्लादेश फंसी। ऑलराइट, शुआ और रसूल का सवाल है, शुआ और रसूल, और क्वेश्चन इज फॉर द पैनल, व्हेन विल द गवर्नेंस सिस्टम ऑफ ICC ट्रीट ऑल टीम्स इक्वली? Thought provoking question. Would anybody like to comment on that? I think they do. It's cricket boards. ICC तो सारे cricket board से मिलके बना हुआ है ना. ICC on itself is nothing. It's every cricket board is involved. जब CEO आता है, जब president भी हर साल बारी लगती है ना, 2-3 साल में president of ICC comes from different test playing nations. Yeah. All right. Question नैयर तारिक का है कि what is Haris Sohail's future in our team? Misbah. हारिस सोहेल ऑब्वियसली अभी खेल रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट और रन्स भी कर रहे हैं, 100 किए उन्होंने 4 डे में। आई थिंक सबके लिए एक ही प्रोसेस है, फिटनेस का है, और फिर रन्स अगर आप बाहर हैं टीम से तो आप रन्स करके प्रेशर डालते हैं ऑब्वियसली सिलेक्शन कमेटी पे भी, एंड देन अकॉर्डिंग टू टीम की जो अभी रिक्वायरमेंट भी है आपको मिडल ऑर्डर बैट्समैन चाहिए, स्पेशली वाइट बॉल क्रिकेट में, वनडे में भी ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट मिडल ऑर्डर बैट्समैन और साथ बॉलिंग भी करता है। तो इफ़ ही स्कोरिंग रन, फिटनेस उसकी अच्छी है, तो अभी भी मैं समझता हूँ नेक्स्ट आपका जो वनडे का वर्ल्ड कप है वो एशिया में होना है, तो बिल्कुल काम आ सकता है। पाकिस्तान को अगर देखें तो 4, 5, 6 नंबर पे अभी भी उस तरह के कंट्रीब्यूशंस नहीं आ रहे जो आपको वहाँ पे एक मैच्योर प्लेयर चाहिए। वसीम? Yeah, I have a question from Said Jawar Abbas. उन्होंने क्वेश्चन पूछा है हम सब से। Salam everyone. Walaikum salam. Question to all. We understand cricket captain is mainly responsible for team performances, playing 11, blah blah. Coaches only assist him or her. However, why are other ex-cricketers, not you guys in brackets, keep blaming the coaches and selectors? Good one. Everybody? आप ही जवाब दें। तू 10? नो, आप पहले जवाब दें। बिल्कुल आपका क्वेश्चन जाबर बिल्कुल ठीक है। आई डोंट नो ये कोई पर्सनल ग्रजेस शायद होते होंगे, कुछ होते होंगे। कोच सिर्फ कप्तान की असिस्ट करने आता है। मेरा जो अगर मैं कोच हूँ, अगर ये कप्तान है शोएब, तो मैं इसको बताऊंगा शेबी ये ऑप्शंस हैं, एंड देन इट्स हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये मेरी ऑप्शंस लेता है कि अपना माइंड करता है। सो आई डोंट नो बट आई कांट टॉक अबाउट अदर क्रिकेटर, एक्स क्रिकेटर्स, व्हाई दे हैव अ गो एट कोचेस एंड स्पेशली कि इसकी तनख्वाह कितनी है, इसको कितना मिल रहा है। हम उसी से नहीं निकले अभी तक। हमारे रिपोर्टर्स भी यही करते हैं कि इसको इतनी तनख्वाह मिल रही है, इसको, और किसी टीम का नहीं हम सुनते। इंडिया का किसी को पता है आज तक किसी कोच को क्या मिलता है? नहीं। अगर आप एज अ कोच अगर आप कहते हैं ना कि इज जस्ट देयर टू असिस्ट द कैप्टन, ठीक है ना, या तो देन फिर जो असिस्ट करता है वो सैक हो जाता है या उसको फारिग कर दिया, कप्तान वही रहता है, ठीक है ना। या तो ये होना कि जी आए हैं, वापस आए हैं, परफॉर्मेंस बुरी हुई है, कप्तान को भी उतार दिया गया है, कोच भी निकाल दिया, एक नई रजीम लेके आ गए हैं। बट इट्स जस्ट दैट अनफॉर्चुनेट है हमारे मुल्क में कल्चर। हाँ, बाहर भी होता है। बाहर ये नहीं होता कि जी आप उसको निकाल देते हैं, आप उसको टेन्योर देते हैं, टाइम देते हैं। इंग्लैंड में 4 साल का आपको पीरियड देते हैं, आप 4 साल के अंदर आप प्रूव करते हैं और उसके बाद वैसे भी वो बदल देते हैं। दे जस्ट लाइक टू मेक चेंज, न्यू पीपल, न्यू आइडियाज़, न्यू थिंकिंग। तो आई थिंक अनफॉर्चुनेट है हमारे मुल्क में कि हम लोग स्केपगोट तो किसी को बनाना होता है। टेन्योर पूरा होना चाहिए, वो आप किसी भी उसमें टेन्योर पूरा होना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आप किसी प्लेयर को सिलेक्ट करते हैं उसको भी क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम आपको क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, ये टीम मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, तो इससे चीज़ें बेहतर हो सकती। All right, and with that, we're going to take a break on Ask the Pavilion. And when we come back, more talk on the other side. Don't go away. Keep watching Sports and 10 Sports. Welcome back from the break. मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं द पेविलियन ऑन ए स्पोर्ट्स एंड 10 स्पोर्ट्स, आवर कंटिन्यूड कवरेज ऑफ द आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप। अब से कुछ लम्हा पहले पिछली ब्रेक में हम आपके आस्क द पेविलियन के सवालात के जवाबात दे रहे थे। गॉट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, वी रियली अप्रिशिएट इट, वी ट्राई टू स्क्वीज इन एज मेनी एज वी कैन विद इन द टाइम दैट वी हैव, एंड अनफॉर्चुनेटली वी रनिंग आउट ऑफ टाइम अगेन टुडे। और ज़रा क्विकली कल के मैच की बात कर लेते हैं। कल पाकिस्तान का बड़ा ही अहम मुकाबला है साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका की टीम बहुत अच्छी लग रही है, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है कल का मैच आइडेंट, देख लीजिए। इट इज़ पाकिस्तान clashing with South Africa at Sydney at 1 o'clock Pakistan Standard Time. Important game for Pakistan.
and of course South Africa, because South Africa wants to pave their way into the semi-finals. तो इसके बारे में बात कर लेते हैं. एक स्टेटमेंट आज आया है जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर सुमरो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गालिबन, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट ये आया है कि फ़खर जमान की जो इंजरी थी उसके बारे में हमने डिस्कस किया था और कोच को और कप्तान को और टीम को बता दिया था कि उसमें एक रिस्क इन्वॉल्व है और वह मामला हो सकता है. बदकिस्मती से वो पिछले मैच में उनको ये आ गया. स्टेटमेंट में पढ़ ही देता हूँ वसीम, थैंक यू फॉर दैट. फ़खर एंड द टीम अंडरस्टूड द risks of coming into the tournament and we got him in. You saw how he performed with batting in the last match. Unfortunately, in the last match, he had a bit of a twist which aggravated his injury. Najibullah Sumro. That's the statement that has come out. Let me bring it out onto the floor for discussion. Wasim, what are your thoughts on this? That's not making any sense. I'm going to the World Cup. I'll make sure my player has played international cricket before. Doesn't matter how important that player is. I know फ़खर is important. What did he said? Okay, yes, risk coming out, performed. How he performed? He got 18 runs. Okay, he looked good for 18 runs. But again, he's got injured now. और पहले भी कोई मैच नहीं खेला था उससे. इसका मतलब कि हम जो स्क्वाड के 15 लड़के थे, हम 14 के साथ गए हुए थे. So obviously, I believe कि वर्ल्ड कप किसी भी इवेंट में, ऐसे बड़े इवेंट में, योर क्रिकेटर्स, ऑल द टीम शुड बी 100% fit and match fit both. वसीम भाई, I didn't understand the actual facts इन्होंने जो लिखे हुए हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं कि हमें पता था कि रिस्क है इसमें. उनको पता था रिस्क आने में, और उन्होंने इट्स प्लेयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो प्लेयर, क्योंकि मैं इसका जवाब इसलिए दे सकता हूँ कि ड्यूरिंग वर्ल्ड T20 जो लास्ट वाला UAE में हुआ था, जब रिजवान को वो वायरल इशू था, आई हैड द सेम इशू जस्ट बिफोर द सेमीफाइनल्स. मैंने भी 3 दिन प्रैक्टिस नहीं की थी सेमीफाइनल से पहले, सो आई वाज आल्सो गोइंग थ्रू द सेम वायरल. तो जब मेरे पास डॉक्टर आए थे तो अ डे बिफोर द गेम ही सेड कि इन माय ओपिनियन यू आर नॉट फिट इनफ टू प्ले टुमारो. So we will assess you tomorrow again and then we will decide. No, but my point is, doctor's job जो team के साथ हैं, their job is to convince you to play. Because if doctor is telling me not to play, I'm just saying then you can finish. If doctor is telling me यार तू रहने दे, तू नहीं ठीक, तो I'll say okay यार, I'll just take the day. I mean, I just say yeah, sorry, finish off. वसीम भाई देखें, एक चीज़ तो clear है, illness something else. Yeah. इंजरी इज समथिंग एल्स. मैं बीमार हूँ तो मैं अपनी कंडीशन खुद बता सकता हूँ कि मैं उसके साथ मैं खेल सकता हूँ कि नहीं, मेरा एनर्जी लेवल क्या है, मैं किस तरीके से, उसमें आपका फ्यूचर उस तरीके से ख़तरे में नहीं है. इंजरी इज़ समथिंग एल्स. तो वो आपको आपके उस डॉक्टर ने या फिजियो ने बताना है कि भाई ये अगर ट्विस्ट हो गया तो आपका कैरियर ख़तरे में है. शाहीन, फ़खर आपके मेन प्लेयर हैं, उन्होंने आगे कि आप उनको रिस्क कर रहे हैं ना, और आपको ये भी नहीं पता कि 100% इनकी परफॉर्मेंस जिस वजह से हम इनको खिला रहे हैं वो इम्पैक्ट भी इनका आएगा कि नहीं आएगा टीम के लिए. तो आई थिंक ये वही बात है कि मलबा अपना दूसरे पे डाल दो, रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लो, विच इज़ वेरी वेरी अनप्रोफेशनल. मैंने उनको बोला ओके लेट्स असेस माय कंडीशन टुमारो आल्सो, बट उस दिन भी मैंने अंदर ये सोच लिया था आई वांटेड टू प्ले. सो नेक्स्ट डे ही केम टू माय रूम एंड ही असेस्ड कि जो भी वो डॉक्टर्स का एक वो होता है जो जिन चीज़ों से वो चेक करते हैं. सो ही सेड लुक, एंड ऑफ द डे इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट इन माय ओपिनियन यू आर नॉट फिट इनफ. I said, look, it's my responsibility. If you want something in writing, I can do that also. It's my responsibility. Anything happens to me on the field, ये मेरी विश थी. ठीक है, तो जो आपने बोला ना कि इलनेस और जो इंजरी है उसकी और चीज़ है, सो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेयर की आती है. प्लेयर को इनसाइड ये पता होता है कि मैं खेल सकता हूँ या नहीं, या मेरी इन्वॉल्वमेंट जो है वो कितनी होगी मैच में. हाँ, 100% ज़रूर होना चाहिए, लेकिन इफ़ यू आर इन गुड फॉर्म एंड यू नो कि यार मैं आई एम गोना गिव everything to the game. But then that doesn't make sense, Shoaib, because right now here in this case scenario, फ़खर I'm not defending them. What I'm trying to tell here is that it's players' responsibility. It has nothing to do with this. What we are. So you're discussing. saying फ़खर is responsible for this?
मुझे लगता है कि फ़खर को ये चीज़ बोलनी चाहिए थी कि यार अगर मैं 100% नहीं हूँ और मैं हॉट स्पॉट्स पे मुझे फील्डिंग करनी पड़ेगी, मुझसे बहुत ज़्यादा डिमांड होगी क्योंकि मैं ऊपर के नंबर्स पे खेल रहा हूँ, तो वो खुद कह सकते थे कि आई एम नॉट फिट इनफ, जो आप मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं इज़ गोइंग टू बी टफ फॉर मी। Well, whatever the case be, Waqar, now Fakhar will not be available tomorrow. I mean, I'm still trying to digest and understand the question. आज दी जो उन्होंने स्टेटमेंट है कि it's a common sense है। एक मैं समझता हूँ कि अगर एक प्लेयर खेला ही नहीं है, खेलता ही नहीं आ रहा, उसको एक इंजरी है, इवन शाहीन के केस में भी मैं कहूँगा कि उसने खेला ही नहीं है कोई क्रिकेट, आपने सफ़र किया, आप वर्ल्ड कप से ऑलमोस्ट बाहर हो गए हैं, Right. ठीक है ना, आपने जो बॉलिंग जिम्बाब्वे के अगेंस्ट की है उसने आप वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं। इट्स अ वेरी फ्रेजाइल वर्ल्ड कप जहाँ पे आप एक मैच कहीं हारेंगे और आप बाहर हो जाएंगे। तो सेंस मुझे नहीं बनी सारे सिनेरियो की कि आपने दो प्लेयर थे, वो इंग्लैंड या लंदन या किसी भी वो डॉक्टर के पास वो वहाँ फिट हो रहे थे, और जो मैनेजमेंट थी जो न्यूजीलैंड में थी या ऑस्ट्रेलिया में थी, दे वर जस्ट वेटिंग फॉर देम टू गिव देम अ टिक उमर रशीद so को they भेजा can था come वहाँ and then to- see, assess you know, them. then assess them. They will tell you that he's fit or not fit. You have to see. You are the management. You have to have him there for the whole period. If he was not 100% fit, he shouldn't have been there. Very simple. Even 10% of risk means you're risking a World Cup. And you also risking a youngsters or anybody's career also. Now a Fakhar का अगर ज़्यादा twist हो गया, I'm not sure if he's gonna be fit for the next maybe 6 months. So you took that risk. That does not make sense. I think doctor panel should be asked this question, कि why this happened. This is a very serious matter. Honestly, I'm telling you, this is a very serious matter. Because if this is an injury that has reoccurred, Yeah. it could be more damaging than the actual original injury. मतलब That's अगर what doctors say. अगर कहता है जी, फखर कहता है जी मैं फिट हूँ, मुझे खिलाओ जी, और आपको पता है कि ये नहीं फिट है, तो you can't allow him to be playing. That's dishonesty ना। अगर प्लेयर की तरफ से देखें, डॉक्टर आपको या फिजियो आपको एक सर्टन तरीके से असेस कर सकता है, लेकिन प्लेयर को अंदर से पता होता है कि वो कितना वो है। रिजवान एंड माई सेल्फ वी सेड इट कि हम लोगों ने ये मैच लेकिन खेलना है, we will give 100%. Illness और different fitness में scenarios. फर्क है, illness और injury में फर्क है। Not only that, if you were not playing regularly and if you were missing for a whole tour behind and a whole, World Cup behind, I would not consider having somebody like that in the team, let alone a professional team. लेकिन अगर हम लोगों ने प्रोफेशनल जो fix है ही करना है ना, किसी सारी चीज़ को। आपकी रिपोर्ट्स और असेस करके फिजियो या जो आपके डॉक्टर्स हैं वही बता सकते हैं कि अच्छा ये क्या है इंजरी, ये टीयर है, ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ओरिजिनली कितना टाइम इसको हील करने के लिए चाहिए, और फिर इसको स्ट्रेंथन करने के लिए एग्जैक्टली मिनिमम कितने वीक्स चाहिए, वही बता सकते हैं। और अगर वो प्रोसेस कहीं पे भी टाइम पूरा नहीं हुआ, इट मीन्स यू आर टेकिंग अ ह्यूज रिस्क। तो वो आपको फील तो होता है प्लेयर को 2 वीक्स के बाद मैं ठीक फील कर रहा हूँ सारा कुछ, लेकिन मुझे ये कितनी दफ़ा हो चुका है, मेरी हैमस्ट्रिंग हुई है, मेरा काफ इंजरी हुई है, रिकवर हो गया, एक मैच पूरा खेल गया, दूसरे मैच में सडनली मुझे लगा मिसबा मैच प्रैक्टिस के बगैर आप किस तरह किसी को खिला सकते हैं? वो भी वर्ल्ड कप में, वो भी वर्ल्ड कप में आप लेके जा रहे हो। मैच प्रैक्टिस के बगैर उसने मैच ही कोई नहीं खेला हुआ। I agree with you there. Well, with that, I think, gentlemen, time is up for us today. हम आपकी खिदमत में कल 11:30 बजे सुबह पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम दोबारा पेविलियन के साथ हाजिर होंगे. Thank you, Shoaib. Thank you, Waqar. Thank you, Wasim. Thank you, Misbah. And thank you all for your kind messages, your comments, your questions, and staying engaged with us. Wherever you are in the world, take care of yourselves. We'll see you tomorrow. Till then, good night.